HSK 2级第11课। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने HSK लेवल 2 लेसन नंबर 11 पढ़ना है। 他比我大3岁。He is 3 years older than me。那首先呢，我们来看一下我们上次学的内容。First of all，हम ये देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या पढ़ा था।我觉得我的网络不太好。I think my internet is not working that well。我来换一下我的网络。Let me change my internet connection。等一下，你们听到吗？听到。啊，听到就可以。那首先呢，昨天就是上节课我们学的是这个文化。लास्ट टाइम हमने ये कल्चरल पार्ट पढ़ा था, चाइनीज टी कल्चर। 你们还记得吗？ आपको याद है? Yes sir. 你们能说说吗？ Can you tell me about Chinese tea culture? चाइनीज में एक फेस्टिवल होता है जिसमें हर मौसम के हिसाब से टी होती है डिफरेंट टाइप्स में। Different season and different kinds of tea, right? Yes. In summer, they drink like green tea, and in winter we can say they use black tea. 好，这就是文化部分。然后呢，我们还学的是这个。मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, parrot 不要玩什么什么了。不要 किसके लिए यूज होता था? किसी चीज के लिए मना करना। 对，非常好。Can you make a sentence with 不要या 别什么什么了？不要喝咖啡的。不要喝咖啡了。क्या मतलब होगा इसका? Don't drink coffee. Don't drink coffee। जी, और भी सब एक एक सेंटेंस बनाए। 不要新衣服了。不要दोबारा बोलेंगे। दोबारा बोलेंगे सेंटेंस 不要。不要新衣服了。 समझ नहीं है इस बात की। नए कपड़े नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए हो तो फिर पूयाओ तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। पूयाओ तो इस्तेमाल करते हैं, यही हमने पढ़ा था। पूयाओ इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी बात से किसी को मना करना हो कि ऐसा मत करो। जैसे 我不要 买新衣服。 Yes， 我不要买新衣服了，可以。好，还有呢？जी, more sentences with 不要。不要看电视了。不要看电视了 ，Stop watching television. Very good. तो एक ग्रामर हमारी ये थी 不要什么什么या PM, and second one was 对 right? A 对 B किस लिए यूज होता है ये 对? के लिए। for के लिए। जी, हर बच्चा एक एक सेंटेंस बनाया तो इसे। 每天喝茶对身体不好。可以。然后呢，बाकी भी बनाए। 茶鸡蛋对相机很好。好。Next。中国人对茶文化很感兴趣。中国人对茶文化tea culture 很感兴趣。We're very much interested。可以，非常好，非常好。
这就是我们第10节课हमने रेडिकल पढ़े थे जी वॉकिंग रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल है रिलेटिव टू caves radicals are very important in learning Chinese characters and थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे लास्ट सेशन में कौन से वर्ड्स पढ़े थे आप मेरे साथ रिपीट करेंगे ख 呵 帮助帮助帮别别哥哥哥哥鸡蛋鸡蛋西瓜西瓜正在正在然后是手机手机洗洗好的，这就是我们上次学的内容。ये वो सारा कंटेंट था जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा।今天呢，我们要学习他比我大3岁 He is 3 years older than me। यानी कि कंपैरिजन सेंटेंस आज हम सीखेंगे आज के लेसन में। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स और फ्रेजेस। जी आप मैच करेंगे। फर्स्ट वन इज 跳舞 डांस F Yes， 跳舞是 dance 可以。在哪儿呢？他们在 F 跳舞 F。然后呢，第二个是说话 to speak C。So can you make a sentence? They are speaking。वो बात कर रहे हैं।他们说话 No。लास्ट लेसन में हमने एक वर्ड पढ़ा था इन द प्रोसेस ऑफ को कैसे कहते हैं। अभी मैंने 正在对他们正在说话 very good। so अगर F से सेंटेंस बनाना हो कि they are dancing तो फिर कैसे कहेंगे 他们正在跳舞跳舞对非常好。第三个是女 female 对女对。第四个是孩子 child बच्चे।唱歌 to sing they are singing कैसे कहेंगे 他们正在唱歌他们正在唱歌给你歌唱歌。然后是男歌男是什么对一男 male 可以。那现在呢你们跟我读一下आप मेरे साथ रिपीट करेंगे 跳舞跳舞说话说话女孩子孩子唱歌唱歌男男好的然后呢第二个 try to say the antonyms of the following words जी इसको कहते हैं ना अल्फाज उल्ट जो उर्दू में कहते हैं opposite words आपने बताने हैं इसके और आई शेई शा पीर शा गोय what is the opposite of गोय 便宜便宜对便宜对错错对का मतलब right and so means wrong 左 means left side or left
有 Yo, we have a word yo. 哪个 yo？ yo 去哪儿了？这个 yo， 头字旁的这个 yo。下一个是来， 出对，来就是去。前，后，前 opposite होता है ना 后 बैक साइड। ली इनसाइड, आउटसाइड को क्या कहेंगे? What? 对，外，外面的外。可以，做的不错。我们继续看一下今天的这个课程。आज के लेसन में हम क्या सीखने जा रहे हैं जी? अगेन कुछ साइड्स आ रही हैं, ओके, and yes, it's all about the comparison sentence, and we will learn about possibility. 那我们来看一下这个，首先我们来看一下这个。这个语言点呢，就是告诉我们 a verb phrase used as an attributive modifier， 动词结构做定语。When a verb or verb phrase is used as an attributive modifier, the should be put between the modifier and the word modified. इसको आसान लफ्जों में समझाने के लिए मैं बताता हूँ, ये क्या पार्टिकल है बीच में? द हमने आज से पहले जो द को पढ़ा है ना, दैट इज 我的老师 right, my teacher, Yes. 你的手表 your wristwatch. सो द आज से पहले हमने सिर्फ नाउन्स के लिए पढ़ा। हम क्या कहते थे? नाउन के बाद ये वाला द लगाते थे, जिस तरह 我的书 你的老师 他的朋友 他的妈妈। सो हम नाउन्स के साथ इस द को लगाते रहे। आज हम किसके साथ लगा रहे हैं? वर्ब के साथ। देखें, पहला फ्रेज पढ़ सकते हैं, 新买的। अब देखें, माय क्या है? एक टू बाय, खरीदना। 新买的 नया खरीदा गया 自行车 यानी कि न्यूली बॉट, नई खरीदी हुई बाइसाइकिल। तो यहाँ पे अब नाउन की बजाय वर्ब भी आ रहा है। इसी को कहते हैं व्हेन अ वर्ब और वर्ब फ्रेज इज यूज्ड एज एन एट्रीब्यूटिव मॉडिफायर, यानी कि द से पहले लगाएं तो द शुड बी पुट बिटवीन द मॉडिफायर एंड द वर्ड मॉडिफायर। तो हम यहाँ पे मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं? 自行车 को कर रहे हैं, 新买的自行车। इसीलिए इसी तरह सेकंड सेंटेंस पढ़ें, 我我妈妈做揉的饭，我妈妈做的饭 क्या मतलब हुआ? मेरी अम्मी का पकाया हुआ खाना, 我妈妈做的饭。第三个 थर्ड वन पढ़ें, थोड़ा सा मुश्किल है। 和你一起和唱你 歌 this is 和你 with you, 和你一起。和你一起唱歌的人，和你一起唱歌的人 के with you together यानी कि तुम्हारे साथ इकट्ठे 唱歌的人 गाना गाने वाला शख्स।好的，这就是我们一个新的语言点。आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं इससे, लाइक वो किताब जो मैंने लिखी थी, बुक रिटन बाय मी, मेरी लिखी हुई किताब। मेरी किताब कैसे कहेंगे? 我的书
我的书 that's fine. मेरी लिखी हुई किताब. शो। हंस तो कैरेक्टर को कहते हैं ना, लिखने को क्या कहते हैं? वो 写的书 right 我写的书。 और कोई इस तरह के फ्रेजेस बनाए हैं जिसके अंदर मलकियत भी आ रही हो, साथ कोई वर्ब आता हो. हम्म, तुम्हारी पकाई हुई चाय. 你做的对，茶。你做的茶. और क्या हो सकता है वर्ब? 是姐姐做的。你姐姐做的饭可以，你们好像都会了这一个语言点。我们继续吧，我们继续 continue。那第二个就是比 सेकंड जो है जी हमारे पास कंपैरिजन सेंटेंस है, और आज से मेरी पीपीटी में शायद ही आप लोगों को opinions मिले. 好，今天呢我们要学习这个 be sentence. ये ग्रामर पार्टिकल है be. कहते हैं जी आप be sentence is a sentence using be to make a comparison. The predicate of the sentence can be an adjective. इसका ये पैटर्न है जी ए पी बी प्लस एडजेक्टिव. ये देखें कंपैरिजन में क्या होता है, जैसा मैं कहता हूँ जी 我的汉语比你好. 我的汉语 means 我的汉语 क्या मतलब है? मेरा करेक्टर वदहान हान यू means Chinese language. करेक्टर होता तो हानजी होता ना. हानजी is character, हान यू is Chinese language. तो मैं कह रहा हूँ 我的汉语 my Chinese मेरी language चाइनीज 比你好. मेरी चाइनीज कैसी है? मेरी चाइनीज तुमसे ज्यादा अच्छी है. वो द हान यू पी नी हाउ means my Chinese is better than you. अगर ये कहना हो like 我比你高, क्या मतलब होगा इसका? What is the meaning of 高? टाल टाल tall, 高. So 我比你高 means I'm tall than you. I'm taller than you. मैं तुमसे लंबा हूँ. हाँ, 我比你高. So इस किस्म के comparison sentences बोले जाते हैं be sentence. 我们来看一下其他的一些例子, कुछ और examples देखते हैं. 第一个，你来读一下 read आप पढ़े first sentence. 他比我高。 क्या मतलब हुआ? वो आई एम बेटर। था वो ही इज टॉल देन मी। था का मतलब क्या हुआ? वो He ही पी मी वो मुझसे काव है, लंबा है. सेकंड पढ़ेंगे. ये पहला वर्ड क्या है? तावे डेविड पढ़े इस सेंटेंस को, सेकंड को. तावे पी वा मंग. हाँ,
大卫比我慢 David is slower than me थर्ड पढ़ेंगे सब आप पढ़ें 我比妹妹妹妹，我比妹妹快快का मतलब होता है फास्ट 快。 कि मैं छोटी बहन से क्या हूं फास्ट हूं 快。 चलिए अब कुछ सेंटेंसेस बनाए अगर ये कहना हो कि आजकल से ठंड है 今天比昨天冷了冷。今天比昨天冷 आजकल से ठंड है अगर ये कहना हो कि ये किताब उस किताब से महंगी है 这个本书比पी से आगे उस किताब सॉरी सर नहीं 那本书 that book को वो कहेंगे ना 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 पंशु और जगह ना पंशु नहीं होता पंशु। मैंने कई दफा आप लोगों को बताया कि ग और पन इकट्ठे नहीं आ सकते 这本书比这本那书本书 ये किताब उस किताब से महंगी है महंगी को कहेंगे गोए 板书 महंगी को गोए कहते हैं ना एक्सपेंसिव यस आधा नहीं वरना आपने अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड कोई से 3 सेंटेंसेस अपने होमवर्क में बनाने हैं अच्छा अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो कंपैरिजन सेंटेंस में तो पी की जगह हम मे ओ ऐड कर देते हैं जिस तरह सबा पहला सेंटेंस पढ़े हाँ नहीं हो वो काओ हाँ मे ओ वो काओ मीन्स कि वो नहीं है वो मेरे जितना काओ लंबा वो मेरे जितना लंबा नहीं है था मे ओ वो काओ दूसरा अरीज आप पढ़े 好的了。没有我 ये वर्ड है शो शो का मतलब होता है पतला तो यहां लिखा हुआ है जी तावे मे ओ वो शो डेविड मेरे जितना पतला नहीं है सो अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा देन वी विल ऐड मेयो कायनात आप ये 4th सेंटेंस पढ़े यहां से 我没有妹妹 गग वाला इससे 哥 नीचे 哥 वाला 没有哥哥没有姐姐高 वेरी गुड ये बड़ा भाई जो है ना बड़ी बहन जितना लंबा नहीं है हाइट में इससे अगला सब आप पढ़ें 今天比昨天姐姐热 No again read again 今天今天今天没有今天के आगे लफ्ज़ है 今 没 天 有 没有 हाँ 昨天昨天热今天没有昨天热 मीन्स आज कल जितनी गर्मी नहीं है
जी अरीज लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। 西瓜没有苹果便宜。हाँ कि वाटरमेलन जो है वो एप्पल जितना पियनी सस्ता नहीं है। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में मे आ जाएगा। अच्छा अगर 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 हमारे पास एडजेक्टिव के बाद जिस तरह हमने बात की कि वो मुझसे लंबा है या उम्र में मुझसे बड़ा है, अगर हमारे पास एडजेक्टिव के बाद कोई डिटेल हो तो वो डिटेल्स जो है ना हम एडजेक्टिव के बाद लगाएंगे सेंटेंस में। लेट्स सपोज समझने के लिए दूसरा सेंटेंस बहुत आसान है, इसको पढ़ें आप सब। तावे वाला पढ़ें सब। 好味比我小2岁。 2岁 वेरी गुड। आपने कहा तावे पी वो डेविड मुझसे शाओ छोटा है, यानी कि वो एज में मुझसे छोटा है। 2岁 कितना छोटा है? 2 साल। तो अगर ये बताना हो कि भाई छोटा है, कितना छोटा है, उसकी एक्सटेंट बतानी हो तो वो बाद में आएगा। अरीज आप इसे नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। 西瓜比苹果便宜一点儿。 क्या मतलब हुआ? वाटरमेलन, शिगवा मीन्स वाटरमेलन। वाटरमेलन एप्पल से महंगा है। पिंगो वाटरमेलन जो है वो एप्पल से पिंगुआ क्या है? एप्पल फियनी। फियनी का मतलब क्या है? चीप। यस वाटरमेलन एप्पल से चीप है। कितना चीप है? ईट यार, थोड़ा सा यार सस्ता है। अगर कहना हो वाटरमेलन एप्पल से बहुत सस्ता है, बहुत को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मच। हन हंतो राइट, हंतो अलॉट। ये अब बनाए सेंटेंस वाटरमेलन एप्पल से बहुत सस्ता है। 西瓜比苹果便宜很多。वेरी गुड। सो ये है जी, अगर डिटेल हो तो आप उसको एंड में उसको ऐड करते हैं। दिस वॉज अवर सेकेंड ग्रामर पॉइंट। अब आपने पी वाले सेंटेंस से 3 पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं, फिर उनका नेगेटिव भी बनाना है मेयो को यूज करते हुए। 好，现在呢，我们来看一下可能。आपने खाली ये वर्ड पढ़ा हुआ है नंग, इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी ना, कैन इसका मतलब होता है। आज ये वर्ड है खनंग, इसका मतलब होता है मे बी। मे बी अगर इंग्लिश में चाइनीज में आपने कहना हो मे बी, आपने पॉसिबिलिटी बतानी हो किसी चीज की, तो फिर हम इसको यूज करते हैं। दिस इज अवर ग्रामर पैटर्न। देखिए मे बी इंडिकेटिंग एन एस्टिमेशन, इट कैन बी यूज बिफोर द वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। 我来打开一下我的 PPT，你们来看一下一些例子。जी पहला सेंटेंस पढ़े सब आप।可能我就今天明天可能下午下雨，明天可能下雨का क्या मतलब है? नंबर दिखाएं क्या है भाई का, मैं बाहर कर कि कल शायद बारिश होगी। 明天可能下雨。सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे कायनात। 它可能出生学校学校的 कि शायद वो कल स्कूल जाए। जाए
देखिए ल है ना, ल किस लिए इस्तेमाल होता है? पास्ट के लिए। था खनंग शु शेषा वाला, वो शायद स्कूल चला गया है। ओके, चला गया है, ओके नोट जाएगा। तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे जी, अरीज। 我明天可能去北京。 बेजिंग, कि मैं कल शायद बेजिंग जाऊं। जी आप लोग और सेंटेंस, एक एक सेंटेंस बनाएं खरंग से। 你可能不认识他。你可能不认识他。Yes, maybe तुम उसे नहीं जानते। Next, good. Next sentence. 他们可能住中国了。 Yes, शायद वो चाइना चले गए हैं। Maybe they are in China now. Next.没有 next 吗？ सबने बना लिया केक? 好的，现在呢，我们来看一下在歌厅歌厅इन कैरों के बाद ये कन्वर्सेशन हो रही है कैरों के बाद में। 好，我来放一下录音，हम अभी listening practice करेंगे। 我要打开一下我的，अच्छा अब रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा, रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। दिस इज लिसनिंग प्रैक्टिस। 第11课，他比我大3岁。Lesson 11. He is 3 years older than me. 课文1，在歌厅。Text 1. In a karaoke bar. 王芳，昨天和你一起唱歌的人是谁？一个朋友。什么朋友？是不是男朋友？不是不是，我同学介绍的，昨天第一次见。 New words. Repeat करेंगे new 唱 words。歌，男，唱歌。好，然后呢，我们来看一下这个，他说 repeat after me，不用 repeat，一个一个来。Let me see your reading capacity。现在，那 A sentences कायनात आप पढ़ लें और B वाले जो है वो अरीज पढ़ लें। 王芳，昨天和你一起唱歌的人是谁？一个苹果。一个朋友，not 什么苹果，一个朋友，一个朋友。什么朋友？是不是男朋友？不是不是，我同学介绍的，昨天第一次见。好的。那他说王芳，王芳क्या है जी? नाम है ना? चलिए, 王芳昨天和你一起唱歌的人是谁? 昨天 means yesterday, कल तुम्हारे साथ 唱歌 मतलब गाना गाना, 唱歌的人 गाना गाने वाला जो शख्स था 是谁? वो कौन था? Who was he? कौन था जी? 一个朋友。 एक दोस्त था। वो कहते वो एक दोस्त था। कहता है 什么朋友? कौन सा दोस्त? 是不是男朋友? 男朋友 means boyfriend। और 是不是हमें पता है ये वो वाले क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें पता होता है आंसर का, हम सिर्फ अपना गेस कंफर्म करना चाहते हैं। 是不是男朋友? वो कहते तुम्हारा बॉयफ्रेंड था वो। And she replies
不是不是 no 我同学介绍的कि मेरे क्लासमेट ने उसे 介绍किया था 介绍 means मीटर to introduce 介绍का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना ये हमने पहले पढ़ा हुआ है सो 我同学介绍的 मेरे क्लासमेट ने उसे मुझसे इंट्रोड्यूस किया था 昨天第一次见 कल हम 第一次 फर्स्ट टाइम 见 见का मतलब है मुलाकात करना 昨天第一次见 कल हम पहली मर्तबा मिले 好第二个课文我们来看一下第二个呢是在宿舍宿舍 कहते हैं जी आपके जो आपका डॉर्मिटरी होता है जहाँ हॉस्टल होता है जहाँ पे आप रहते हैं 那他说左边这个看报纸的人这个看报纸的女孩子是你姐姐吗？是。然后他说右边写字的那个人是我哥哥。你哥哥多大？25岁。他比我大3岁。अच्छा वो लोग जिनको कैरेक्टर में भी मसला है कि मेरा आज से मेरे लेसन में सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे तो वो बाद में क्योंकि आपकी बुक के ऊपर वो भी अवेलेबल है ओपिनियंस अवेलेबल हैं तो आपको अगर कोई कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा वहाँ से देख सकते हैं अपनी बुक को निकाल के पढ़ सकते हैं ये टेक्स्ट 2 हम पढ़ रहे हैं मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो कहता है जी जोपियन का मतलब क्या है What is the Left. meaning of yes 左边 means left side कहते हैं left side पे 这个看报纸看报纸 means newspaper reading ये जो लेफ्ट खानपाश। साइड पे बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है 看报纸的女孩子 ये जो लड़की है सॉरी the girl reading newspaper 是你姐姐吗 क्या वो तुम्हारी बड़ी बहन है जी आप मुझे बताएं क्या वो उसकी बड़ी बहन है लेकिन उसने कहा 左边这个看报纸的女孩子 the girl on the left side reading newspaper 是你姐姐吗 is she your बड़ी बहन क्या वो तुम्हारी चेचे है是देखा ना आगे लिखा हुआ है which means yes उसका जवाब हाँ में है फिर वो कहता है 左边写字的那个人是我哥哥 राइट साइड पे 右边 राइट साइड पे 写字का मतलब होता है टू राइट कैरेक्टर्स द ना करण राइट साइड पे कैरेक्टर लिखने का जो शख्स है ना वो क्या है मेरा ग मेरा बड़ा भाई है सवाल होता है नी ग तोता तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो कितने साल का है यस वेरी गुड 25 岁 25 साल का है और वो कहते हैं था पी वो ता वो मुझसे बड़ा है कितना बड़ा है 3 岁 मुझसे 3 साल बड़ा है अच्छा मैंने अभी एक चीज नोट की है कि मेरी इस पीपीटी में मैंने न्यू वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन किया था सो फॉर दैट पर्पस लेट मी एक्सप्लेन द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द बुक ना वो इगा चांग पहला जो हमारा न्यू वर्ड था दैट इज छांग जी छांग मीन्स टू सिंग To राइट sing. गाना छांग आप देखेंगे इस कैरेक्टर को ही माउथ का रेडिकल है और ये ऐसे लग रहा है कि म्यूजिक का ही वो सैम्बल सा बना हुआ है छांग का मतलब होता है गाना टू सिंग और ग कहते हैं सॉन्ग को और ग के अंदर ये देखें देयर इज अ रेडिकल ऑफ इस रेडिकल को कहते हैं मूवमेंट ऑफ माउथ छांग के अंदर और ये जो ग है ये ग वाला ग है ना ग वाला ग बड़ा भाई वाला सो छांग मीन्स टू सिंग अ सॉन्ग दूसरा जो कैरेक्टर है हमारे पास दैट इज नान का मतलब होता है मेल नान के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज द फील्ड्स राइट ये फील्ड्स का रेडिकल है ऊपर वाला और नीचे कौन सा पार्ट है पावर वैषम्य वाला। पावर रेडिकल है
लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे सेम आंसर दिया था, तभी मैंने आपको बताया था दिस इज पावर रेडिकल। आप लोग को लगता है मेरी वीडियोस को दोबारा नहीं सुनते। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइस टू गो थ्रू इट थॉरली, और इसमें चीज़ों को नोट करना है आपने, क्योंकि वेरी सून वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट अवर HSK लेवल 3। तो रेडिकल्स को याद रखना, कैरेक्टर को रिकग्नाइज करना और पूरे सेंटेंस को समझना, फिर उसका ओवरऑल मतलब क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल 3 के लिए। नेक्स्ट जो न्यू वर्ड है जी हमारे पास, दैट इज न्यू। ये हमें पता है, वैसे ही फीमेल को कहते हैं, और इसका रेडिकल हमें अच्छी तरह से आता है। हाइज, हाय और ज दोनों में ही चाइल्ड का रेडिकल है, और हाइज कहते ही बच्चों को है। ये डायरेक्शंस हमने आई थिंक लेसन नंबर 2 या 3 में भी पढ़ी थी। यूरोपियन, राइट, राइट साइड, यस सर। यूरोपियन साइड को कहते हैं, और इसके अंदर भी ऊपर जो है ये आर का रेडिकल है, नीचे वॉकिंग रेडिकल है। तो पियन का मतलब होता है साइड, और यो का मतलब है राइट। यो का कैरेक्टर बहुत आसान है, इसमें माउथ का रेडिकल। पी जो है आपको पता है, इट मीन्स दैन, सुपीरियर टू और इन्फीरियर टू, कंपैरिजन के लिए आ रहा है। ए पी बी, हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। ए पी बी, अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन बताना हो। नंबर 7 पे हमारे पास वर्ड है जी प्यानी। जी ये भी ऊपर वार्म अप में था। प्यानी मीन्स चीप। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ प्यानी? क्वाई। नो, क्वाई का मतलब तो फास्ट होता है। कोई कोई गोए, यस, गोए मीन्स एक्सपेंसिव। यस, गोए। प्यान के अंदर हम देखें तो इसके अंदर सिंगल पर्सन रेडिकल है, और ये वाला कैरेक्टर बहुत ये आगे जाके आएगा। ये वाला कैरेक्टर कौन सा है, मैं लेसन नंबर 15 में आएगा। सो प्यानी मीन्स चीप। चीप थिंग्स को क्या कहेंगे? 便宜东西，对，便宜的东西。cheap clothes，便宜的衣服， yes，便宜的衣服。नंबर 8 से लेके 11 तक हमारे पास जो वर्ड्स हैं, इसमें पहला वर्ड है जी शोख्वा। इसको भी मैंने वार्म अप में एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब होता है टू स्पीक, टू से, टू टॉक, बात करना। तो दोनों, इसमें दोनों में ही लैंग्वेज का रेडिकल है। हमने सेंटेंस भी बनाया था कि दे आर टॉकिंग, वो लोग बात कर रहे हैं। जी कैसे बनाया था? 他们正在说话。 Yes， 正在 means in the process of， 他们正在说话。नेक्स्ट वर्ड है जी खनंग। ये भी ग्रामर पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका मतलब होता है मे बी, परहैप्स, प्रोबेबली, शायद। ये एक एस्टिमेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि कल शायद बारिश हो। मिंग थियन खनंग शायु, कल शायद वो ना आए। मिंग थियन खनंग था पुलाए। खनंग, सो ख एक ख है, नंग वाला कैरेक्टर हमें पहले ही आता है। 去年 वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। 去年 छु का वैसे मतलब होता है टू गो। 去年का मतलब है गुजरा हुआ साल, विच मीन्स लास्ट ईयर। हाउ टू से नेक्स्ट ईयर? मिनियन। यस, वेरी गुड, मिंगनियन। नेक्स्ट ईयर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिंगनियन, नेक्स्ट ईयर। एंड लास्ट ईयर के लिए 去年। और लास्ट वर्ड है जी हमारे पास शिंग। शिंग का मतलब होता है फैमिली में नेम या सर नेम, आपकी जो ज़ात होती है, इसमें फीमेल का रेडिकल है। और शंग बॉर्न वाला कैरेक्टर है, लाइफ वाला कैरेक्टर है। जब आप पैदा होते हैं, ठीक है, तो आपकी ज़ात से मुंसलिक है शिंग। तो अगर पूछना हो आपकी ज़ात क्या है, कैसे पूछेंगे? व्हाट्स योर सर नेम? यू नो हाउ टू आस्क। आपकी ज़ात क्या है चाइनीज में कैसे पूछेंगे? निचाओ तो नाम के लिए इस्तेमाल है। निचाओ शिंग। 行 ओके, आपने भी बोला नी 什么 नी 行？ नी शिंग शबा कह सकते हैं ना, आपकी ज़ात क्या है। लेकिन आमतौर पे यह नहीं इस्तेमाल किया जाता। चाइनीज में एक फ्रेज यूज किया जाता है निन। पहले तो नी की बजाय निन इस्तेमाल किया जाता है रिस्पेक्ट के लिए, फिर गोए लगाया जाता है। गोए का मतलब क्या है? एक्सपेंसिव, राइट?
निन गुए सिंग। तो गुए जो है इसका मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं होता, इसका मतलब ये रिस्पेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। निन गुए सिंग का मतलब है जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना आपकी ज़ाते गिरामी क्या है, निन गुए सिंग। तो ये एक फ्रेज यूज होता है ओवरऑल, निन गुए सिंग आपकी ज़ाते गिरामी क्या है, क्योंकि जब हम किसी की ज़ात पूछ रहे हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट शो करते हैं। निन गुए सिंग, वो आगे से कहता है वॉशिंग वॉन्ग। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अबाउट शिंग। ये थे जी हमारे न्यू वर्ड्स। अब हमारे टेक्स्ट नंबर 3 और 4 रह गए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं जी। एट अ स्टोर, ये बातचीत हो रही है ज़ाय शांगतियन जी। वो कहते हैं जी 今天的西瓜怎么卖जी। 3.5一斤，比昨天便宜。是，苹果也比昨天便宜一些，您来点儿吧。ये है जी टेक्स्ट 3। वो कह रहा है 今天的西瓜 आज का जो वाटरमेलन है, 怎么卖 卖का मतलब क्या है खरीदना। बेटा? वो है Buy. माय विद द थर्ड Price. टोन। माय का मतलब है विद थर्ड टोन, खरीदना। यहाँ पर आज विद द फोर्थ टोन है। माय का मतलब होता है टू सेल, बेचना। 今天的西瓜怎么卖 कस्टमर पूछ रहा है आज का वाटरमेलन किस तरह बेच रहे हो। 怎么卖 इसका मतलब यही है कि वो पूछ रहा है 多少钱 कितने का है, कीमत पूछी जा रही। बताएं जी क्या कीमत है। 3.53.5一斤，一斤का मतलब क्या है? चिन का मतलब होता है आधा किलो, हाफ केजी ना। मैंने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट में बताया था आपको, हाफ केजी का मतलब है। तो 3.5 का मतलब है 3 RMB। 3.5 का मतलब है 3.5 RMB के कितने मिल रहे हैं जी? ईच इन आधा किलो जो है ना वो 3.5 RMB के मिले। ओके, सो कस्टमर कहता है जी पी जोथियन एज कंपेयर टू येस्टरडे प्यानी, कल से तो सस्ता है। तो उसको दुकानदार कहता है यस, पिंगुओ ये एप्पल जो है वो भी ऑल्सो पी जोथियन प्यानी, एप्पल भी कल से सस्ता है। ईशिए का मतलब है फ्यू, मतलब थोड़ा सा। सेब भी कल से थोड़े से सस्ते हैं। निन लाए त्यारपा, तुम थोड़े से लो। इस फ्रेज का भी मतलब है तुम थोड़े से लो। निन का मतलब है आप, लाए त्यारपा, अच्छा लाए का वैसे बेसिक मतलब तो है आना। निन लाए त्यारपा का तुम थोड़े से आओ। आओ का मतलब नहीं है यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए मतलब दे रहा है कि तुम थोड़े से ले लो। निन लाए त्यारपा टेक सम, इसका ये मतलब है। सो लाए के भी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह आज हमने एक देखा एक यूनिक मीनिंग, निन लाए त्यारपा, ठीक है ना। द एप्पल्स आर ऑल्सो चीपर, वाई नॉट टेक सम, तुम क्यों नहीं थोड़े से लेते। जिस तरह अगर कोई खाना खा रहा है तो उसने खाना फिनिश कर लिया, मैंने उसे दोबारा डाल के देना है, या तुम थोड़े से चावल लो। निन लाए त्यार मी फन पा, कि आप थोड़े से चावल लें, तो आप थोड़े से लें, उस सेंस में लाए इस्तेमाल होता है। ये था जी हमारा टेक्स्ट नंबर 3। टेक्स्ट 4 है जी 前边说货的那个人就是我的汉语老师，你可能不认识他。सामने जो शख्स बात कर रहा है ना वो मेरा चाइनीज टीचर है। नी खनंग पूरन शिता, तुम शायद उसे नहीं जानते। कहता है था शिन लाए द हान यू लाओ मा, शिन लाए का मतलब न्यू कमर, क्या वो न्यू कमर चाइनीज टीचर है? वो कहता है जी 是去年来的，पिछले साल आया था। था शिंग वांग, उसकी जात वांग है और 28 साल का। कहते हैं था बी वो मन लाओ शाओ 2 岁, वो हमारे टीचर से, शाओ मीन्स छोटा है, 2 岁 2 साल छोटा। ये था जी आज का हमारा लेसन। आप इसकी वर्कबुक करें, हर ग्रामर पैटर्न से 3-3 सेंटेंसेस बनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 再见。再见。 Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. 再见.